Hello everyone. So in the previous class, we were studying cost function for logistic regression, and as you are seeing in front, ये हमारा cost function है logistic regression के लिए, and हमने ये निकाला था क्रॉस एंट्रोपी से. ओके, एंड ये पता लगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ क्लासिफिकेशन जो है वो टेक्निक को फॉलो करता है. एंड लेट अस सपोज कि हमारे पास एक बाइनरी जो है वो आउटकम्स हैं. ऑल राइट, तो उसके पर्सपेक्टिव में आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे कि वन आने की प्रोबेबिलिटी यदि पी है तो ज़ीरो आने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी होगी. ओके, तो ऑन रिगार्ड्स टू दैट आपने यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन लिखा जो कि है माइनस वाई लॉग पी माइनस ऑफ वन माइनस वाई लॉग ऑफ वन माइनस पी. मैं यहाँ एच थीटा एक्स को पी बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, यही होता है वो. एंड द वैल्यू ऑफ पी इज वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस वाई. ठीक, और वाई होता है बी प्लस डब्ल्यू एक्स. ठीक, तो इस ऑल दीज थिंग्स ना यू हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास. और ये आया कहाँ से है? ये माइनस वाई लॉग पी माइनस वाई लॉग ऑफ वन माइनस पी. ये आपका क्रॉस एंट्रोपी से आया है, वेयर यू आर हैविंग पी एंड क्यू दो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास. पी जो है वो एक्चुअल है, क्यू जो है वो प्रिडिक्टेड है. ओके, तो एक्चुअल इज द एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर मॉडल इज गिविंग. वो प्रिडिक्शन वाली बात करता है. ठीक, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही निकाल के देता है आपको. इट गिव्स यू सच प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू. ठीक है, तो after getting the probabilities, which one is having the highest probability, because we know there is a cutoff threshold hota hai. So there's something which is above the threshold, that will be the either class. Okay, and so on. Fine. So in yesterday class we did a derivation. Okay, we did a complete derivation for the cost function. Minimization we want to do, है ना, optimization problem. Because the thing is cost is overall, it's a, I need to achieve the accuracy. Okay, so in order to achieve the accuracy I need to reduce the cost or the errors which are present in the model. Okay, so for that I need to perform optimization. For optimization I need to perform the gradient descent. Okay, so I partially differentiated the cost function, okay, with respect to b and w, that is with respect to bias and the weight. Okay, and with this differentiation I found the corresponding values of these two. Okay, so let me share my entire screen now, and I have already shared the derivation notes. Yesterday also I did performed this activity in the live class. So here are the images related to it. I hope you have checked. Okay, so if you can see this, if you can see this image. Okay, I hope why let me, okay, make this like now I think it is quite okay. So my cost function was minus y log p minus of 1 minus y log of 1 minus p. Then you can put the value of p inside this function. That's what I did yesterday also. Just put the value of p inside it. Okay, and after putting the value of p, okay, you kindly do some solution here to make it, simplified equation. Okay, तो यहाँ पर value I put it down. Okay, and then I further solved it according to some log properties I did here. Then here also some log property, log of a by b, log of a by b equal to log a minus log b. Okay, here also I did the same thing. So overall I done the simplification of this cost function, and at the end I got the cost function as minus of minus b plus wx minus log of 1 plus e की power minus b plus wx plus y b plus wx. This was the cost function which I got after doing some calculations. इसी को मुझे differentiate, okay, with respect to b one time
and with respect to w another time. That's what I need to do. Okay, I need to perform the differentiation. Okay, fine. So here, take, I did the differentiation with respect to b. Okay, here performed the differentiation. Okay, and if you do that, your w will become constant and rest of the terms will also become constant. Fine. Here you are going to get the results. Okay, and you can solve it. Okay, not a hard deal to solve. You can solve it and you are going to get the result as p minus y. Okay, and when you partially differentiate the cost function with respect to w, okay, here is what I'm getting again. Okay, so in this particular case, only w will be there for the partial differentiation and rest of the terms will behave as a constant. Okay, so after differentiation, you will check that what are the terms I'm getting. A few terms will be cancel off. Okay, and at the end I'm getting xp minus y. Okay, xp minus y. So what I got here, del c by del b, del c by del b. Okay, let me take a note of it. I'm getting del c by del b equal to p minus y. Okay, so if I say this thing equal to 0, if I say this thing equal to 0, okay, so p minus y should equal to be 0 and p should be equal to y. It should be like this. Okay, and if I say del c upon del w, del c upon del w to be equal to 0, okay, so in this particular case my del c by del w is x p minus y. Okay, x into p minus y. So x into p minus y should be equal to 0. So here either x should be equal to 0 or either p minus y should be equal to 0 or both should be equal to 0. Then only I can get the minimum of the weight. Okay, so somehow what we can put this gradients equal to 0 and we are getting these things. Okay, fine. So kindly do take a note of the derivation which I did yesterday in the live class. I followed up the same thing in my notes. I did a handwritten. I shared it with you all. Okay, so just do take care of that also. Just check out. You can also do the hands-on from your side and see whether you are getting the results or not. So finally, uh, we performed the gradient or the calculation for b and w, optimization of cost function. Okay, and in order to get new b and the w, it has been already known that the new bias is given as b minus learning rate into del l by del b. ये होता है आपका न्यू बायस एंड न्यू वेट इज गिवन एज w माइनस अल्फा del l by del w. ये होता है. So del l by w del b you already know, del l by del w you already know. ये आपको पता है. ठीक है, सो यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ देम हियर. यहाँ रख सकते हैं आप टू कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ बी डैश एंड द बी. ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर डीप लर्निंग ऑल्सो. वहां पर भी यही होता है. दिस इज हाउ वी कैन अपडेट द वेट एंड द बायस. ओके, देयर ऑल्सो वी डू द सेम थिंग. आपका जो न्यूरल नेटवर्क होता है, ओके, सो सेम अप्रोच इज बिन फॉलोड फॉर अपडेशन ऑफ वेट एंड द बायस, where alpha is the learning rate. Okay, that is the step size. How much steps you want to take to reach to the minima. Fine, so here we are trying to reach minima only by updating the weight and the bias so that my error or the losses needs to be reduced. यही करना है. Okay, so आपका cost function I did shown to you, optimization of the cost function, the complete derivation we did, and here is your the way how you can update your b and the w, these coefficients, how you can update it.
ये हो सकता है. Okay, fine. Then same thing has been written here also. Yeah, same thing is written here also. Okay, so you can calculate the weight and the bias. This is how you can done. You can do. तो यही लिखा है यहाँ पर. Okay, so weight is equal to, that means new weight is equal to older weight minus alpha into p minus y बाहर x है. ठीक है, इट्स द सेम थिंग, डोंट कंफ्यूज. ये आपका लर्निंग रेट है और दिस इज द ओल्डर वेट. सो न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्डर वेट माइनस अल्फा पी माइनस वाई इंटू एक्स. ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू, मतलब दिस इक्वेशन. सिमिलरली बी डैश भी हो जाएगा. बी डैश इज इक्वल टू बी माइनस अल्फा पी माइनस वाई. देर इज नो एक्स प्रेजेंट देयर, बस ये आपका बी आ जाएगा. ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ योर पार्शियल डिफरेंशिएशन हियर, ये आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो वी डिड परफॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. वी डिड द सेम फॉर लीनियर रिग्रेशन ऑल्सो, वहाँ भी करा था हमने. उसका भी कॉस्ट फंक्शन वी डिड परफॉर्म्ड, उसका ऑप्टिमाइजेशन करा था. ठीक है, सो वाई वी सब्ट्रैक्ट द वेट एंड द बायस विद द डेरिवेटिव. क्यों करते हैं ऐसा? सी, ग्रेडियंट गिव्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट एसेंट of the loss function and the direction of steep and descent in the opposite gradient. मुझे opposite जाना है actually. तो gradient क्या होता है? When we take calculate the gradient, they give the direction of ascent, ऊपर जाने का रास्ता. Okay, this is what the gradient do. When we perform the differentiation, they give the direction of the steepest ascent. However, we want to perform descent. We want to go down. Okay, fine. So that's the reason we have to apply a minus sign in order to reverse the direction of the gradient. Okay, so that is why we subtract the weight w dash equal to w minus alpha del L by del w, है ना, इसलिए करते हैं अपन subtraction. Fine. So the process of updating the weight and the bias will continue until the cost function reaches to ideal value or closer to zero. And that means it is saying unless and until your error or loss doesn't equates to zero, okay, your gradient will continue. Okay, here in case of the derivation of the logistic regression, we will see that we are going to give your number of iterations. हम दे देंगे अपनी तरफ से कि 100 times या 200 times, how many times you want to iterate your model. Okay, so हम यहाँ से दे देंगे. Fine, from our side. तो लॉजिक वही है. इट वांट टू रीच जीरो, मिनिमम एरर ऑप्टिमाइजेशन, ये करना है. आफ्टर बिल्डिंग द मॉडल, इट इज ऑब्वियस वी आर गोइंग टू चेक हाउ वेल अवर मॉडल इज परफॉर्मिंग बाय फिटिंग द अनसीन डेटा. ये हम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बातें हैं आपकी फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. ठीक है, फाइन. सो just take a quick recap related to it. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक प्रॉब्लम दिया आपको, टू बिल्ड अ मॉडल टू प्रेडिक्ट वेदर अ स्टूडेंट गेट्स एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी और नॉट. ठीक है, अगेन वी आर ट्यूनिंग अवर सेल्फ टू द बेसिक. सो द प्रॉब्लम वॉज, suppose that we are the administrator of a university department and we want to determine each applicant's admission based upon the two exam. Okay, so we have a historical data from the previous applicants that you can see as a training of the logistic regression. You can train your model with them. Okay, and we are having the applicant score for the two exam at the current सिनेरियो. ओके, तो हमारे पास पुराना डेटा है ऑफ द एप्लीकेंट्स जो कि ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे, एंड वी नो दैट विच ऑफ देम आर रिजेक्टेड एंड विच ऑफ देम गॉट द एडमिशन. अब हमारे पास न्यू फ्रेश एप्लीकेशंस आएंगी. सो आई डोंट वांट टू मैनुअली फिल्टर द एप्लीकेशंस, ये नहीं करना चाहता मैं. ओके, सो द आइडिया इज टू यूज अ मॉडल एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आई वांट टू फिल्टर द एप्लीकेशंस, कौन सा बेटर रहेगा एडमिशन के लिए एंड विच स्टूडेंट विल बी रिजेक्टेड फॉर द एप्लीकेशन. ओके, सो वी आवर टास्क इज टू बिल्ड अ क्लासिफिकेशन मॉडल. ठीक है, ये करना चाह रहे थे अपन. ओके, तो विच इज बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन बेस्ड अपॉन द स्कोर्स फ्रॉम द टू एग्जाम.
बेस्ड अपॉन द स्कोर्स ऑफ द टू एग्जाम। ये हम काम करना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेटा वगैरह है और उसको लेकर जो है वो काम किया गया है। ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन है, कॉस्ट फंक्शन है, ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ना वी विल सी अहेड, आगे पढ़ेंगे अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सेपरेटली विल चेक आउट द इम्प्लीमेंटेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो अभी मैं नहीं बता रहा। तो ये एक यूज केस है या एग्जाम्पल है कि हाउ इन विच एरिया वी आर गोइंग टू यूज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कैसे करना है, क्या क्लासिफिकेशन होना है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द यूज केस। ठीक है, लेट्स टॉक मोर अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक, सो हियर इज द कंपैरिजन बिटवीन लीनियर रिग्रेशन एंड द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये कंपैरेटिव चार्ट है। लीनियर रिग्रेशन में यू आर गेटिंग अ लाइन। ठीक है, आप देख सकते हैं एक रिग्रेशन लाइन है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यू आर गेटिंग द प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी बिटवीन द 0 to 1। ये मिल रहा है आपको, आउटकम्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, जो कि 0 से 1 के बीच में। ठीक है, हियर द रिग्रेशन लाइन प्रिडिक्टेड वाई कैन एक्सीड 0 to 1, ये भी हो सकता है। बट हियर प्रिडिक्टेड वाई लाइज बिटवीन 0 to 1, जो प्रिडिक्शन आएंगे 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे। ये अंतर है लॉजिस्टिक और लीनियर रिग्रेशन के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए हमने इसको चूज कर लिया। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्वेशन बिटवीन टू और मोर पॉसिबल क्लासेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू स्पैम और हैम। यदि आपका ईमेल क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट है तो यू कैन यूज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यदि आपका ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन प्रोजेक्ट इज बिन देयर, सो यू कैन क्लासीफाई द ट्यूमर्स वेदर इट इज अ बेनिंग और वेदर इट्स अ malignant, आप यूज कर सकते हैं। ओके, एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी यूज ऑन एनी डेटा सेट, नोवेल डेटा सेट, एंड वी कैन ट्रेन अवर मॉडल। ओके, एंड वी कैन यूज द योर मॉडल, ट्रेंड मॉडल, टू परफॉर्म द प्रेडिक्शन। इसने ये भी कहा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी यूज ऑन नोवेल इनपुट डेटा विच द मॉडल हैज नेवर सीन बिफोर ट्रेनिंग। आप इन जनरल टर्म्स में भी क्लासिफिकेशन लगा सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। वी जो है, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन देन कैन बी यूज ऑन नोवेल डेटा विच द मॉडल हैज नेवर सीन बिफोर ड्यूरिंग ट्रेनिंग। यानी कि अनसीन डेटा की बात कर रही है, नोवेल डेटा नहीं, अनसीन डेटा। तो एक बार मॉडल ट्रेन कर लीजिए, फिर लगा दीजिए आप। ओके, सो कई यूज केसेस है, कई एग्जाम्पल है। वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई गेव यू रिसेंटली रिलेटेड टू द एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स, हियर देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, डिफॉल्टर loan repayment, whether the customer is going to repay the loan or not। okay, तो based upon the information related to age, gender, location, तो आपका data set can be anything and you are having the target of your as a classifier। okay, target जो होगा classifier होगा, whether the person can pay the loan or not। okay, ये होगा। फाइन, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज केस, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ये। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। So here I am having a data set which is having the features as client ID, age, gender, loan size, time payment was overdue and defaulted or not। वो defaulter है या नहीं है। ठीक है, तो if it is paying the loan on timely basis तो defaulter नहीं है। For example, इसका कोई ड्यू नहीं है, this person कोई ड्यू नहीं है इसका, and this person is having only one due। okay, but this person is having 12 dues। okay, this person is not at all paying the loan, so obviously it is a defaulter। okay, so this is one of the data, and with this particular data and I want to train my model and just check कि वो for unseen data whether there will be any defaulter or not। okay, तो यहाँ हमने क्या करा, the yes and no categories can be recorded into 0 and 1। okay, the yes and no can be recorded into 0 and 1, तो इसको क्या कर दिया हमने, we converted it into what, binary। no को बोल दिया 0 एंड यस को बोल दिया 1, ऐसा करते हैं। तो यू कैन डू द लेबल इनकोडिंग हियर, और अदर यू कैन परफॉर्म डिक्शनरी मैपिंग, ये कर सकते हैं आप। 0 1 कर दीजिए उसको। ठीक है, ये हो गया। एंड देन ये देखिए डेटा अपडेट हो गया, दिस थिंग। नाउ आफ्टर दिस वी कैन ट्रेन अवर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल दैट विल लर्न अ मैपिंग बिटवीन द इनपुट वेरिएबल्स, दैट मीन्स एज, जेंडर, लोन साइज एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, इसमें मैपिंग कर देगा। ठीक है, तो
जैसे फॉर एग्जांपल मॉडल ट्रेन हुआ इसी डेटा से। सो देर आर मेनी अदर थिंग्स विच यू कैन अप्लाई टू परफॉर्म द डेटा प्री प्रोसेसिंग, जैसे कि जेंडर है। ओके, तो जेंडर कैन बी कन्वर्टेड अगेन इनटू योर 0 and 1, ये भी करना चाहिए था, लेबल एनकोडिंग होना चाहिए था। ओके, लेबल एनकोडिंग या वन हॉट एनकोडिंग डिपेंड कर रहा है, आप देख लीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, whether here we should put a gender into label encoding or one hot encoding? What do you think? 0 1 will be okay? और यदि मैंने इसको लेबल एनकोड कर दिया तो स्पार्स मैट्रिक्स बनेगा, स्पार्स में कन्वर्ट होगा। सो और लेबल एनकोड करा, लेबल एनकोड कब करते हैं? व्हेन वी डू द लेबल एनकोडिंग, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग लो, मीडियम एंड हाई, सच काइंड ऑफ कैटेगरिकल डेटा इज अवेलेबल, एक ऑर्डर में दिया ऐसा कुछ करके, वी कैन डू द लेबल एनकोड। ओके, low is 0, medium is 1, high is 2. This is how we can represent them मैथमेटिकली, ऐसा हम उसको एनकोड कर देते हैं। अभी यहाँ पर मेल एंड फीमेल है, ये कोई लेवल नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट लेवल, दे आर नॉट लेबल। ठीक है, वी कैन डू वन हॉट एनकोडिंग, बस एक ही बात यह है, इफ आई कैन डू द वन हॉट एनकोडिंग आई विल बी हैविंग द स्पार्स, बहुत सारा वैल्यू जीरो होगा यहाँ पर, बट स्टिल वी कैन परफॉर्म लेबल एनकोडिंग हियर एंड वी कैन मेक टू सेपरेट कॉलम्स, एक फीमेल का कॉलम बन जाएगा और एक मेल का कॉलम बन जाएगा। वेयर फीमेल, जहां पर फीमेल का होगा ट्रू वैल्यू, वहां इट विल बी 1 एंड मेल वाला सारा 0। एंड मेल वाला जो होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड, इसका मैं लेबल एनकोड कर रहा हूँ, नहीं वन हॉट एनकोडिंग कर रहा हूँ। लेबल एनकोडिंग करूंगा तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, ये ऐसा हो जाएगा। बट मैं यदि इसको लेबल एनकोड ना करते हुए मैं इसको वन हॉट एनकोडिंग, इफ आई डू द वन हॉट एनकोडिंग, सो सेपरेटली आई विल बी क्रिएटिंग टू कॉलम्स। ठीक है, एक मेल का कॉलम एंड फीमेल का कॉलम। व्हेन मेल इज 1, फीमेल इज 0, व्हेन मेल इज 0, फीमेल इज 1, एंड वेल मेल इज 1, फीमेल इज 0। तो ऐसा जो है टू मोर कॉलम्स बन जाएगा, ये आपका वन हॉट एनकोडिंग है, या डमीज है, इनफैक्ट डमी क्रिएट कर लेना। ओके, तो लेबल क्या होता है, जहां मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऑर्डर फॉलो, दे आर जस्ट फॉलोइंग एन ऑर्डर लाइक लो, मीडियम, हाई, समथिंग लाइक दैट, तो मैं वहां पर लेबल कर देता हूँ। आइदर यू कैन यूज वन हॉट एनकोडिंग या डमीज क्रिएट कर सकते हो आप, तो ये डमी क्रिएट करा मैंने। ठीक है, और क्या बचा डेटा के अंदर, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द डेटा? एज है, एज को, एज के साथ आप कुछ कर सकते हो। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू स्केल इट? डिड लॉजिस्टिक रिग्रेशन टोल्ड टू स्केल योर डेटा? क्या इसका अजम्पशन है ये डेटा स्केलिंग कर रहे? तो दे हैवंट मेंशन इन द अजम्पशन दैट यू हैव टू स्केल द डेटा देन यू हैव टू पुट इनटू द मॉडल, बोला नहीं है। क्लाइंट आईडी तो ऑब्वियसली मैं ड्रॉप करूंगा, ये अननेसेसरी है डेटा से, तो आई विल ड्रॉप दिस थिंग। इसको मैं स्केल नहीं कर रहा, इसको मैं लेबल इनकोड ना करते, वन हॉट एनकोडिंग आई एम डूइंग। लोन साइज, ये जो लोन साइज है ना, आई विल गोइंग टू फिल्टर द डॉलर फ्रॉम हियर, द डॉलर साइन, I am going to, in the data pre-processing, dollar sign will be removed from this data. Okay, and I'm going to only pick the numerical values, that will be the loan size. ओके, इसको भी मैं कुछ नहीं कर रहा, इट विल बी केप्ट एज इट इज। तो ना तो इसको स्केल करा मैंने, ना तो इसको स्केल करा, ना तो इसको स्केल करा, नथिंग स्केल्ड, ओनली जेंडर वाले को मैंने जो है डमीज क्रिएट करा या वन हॉट एनकोडिंग करी, और क्लाइंट आईडी को ड्रॉप कर दिया, और इसको 0 1 में कन्वर्ट करा था टारगेट को, ये काम करा है। ठीक है, इससे अब मैं डेटा को ट्रेन करूंगा, हालांकि यहाँ करा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको हाउ टू डील विद द डेटा। ठीक है, हाउ टू डील विद द डेटा, फाइन। तो डेटा को आप प्री प्रोसेस करें, सब करें, एंड द रिजल्ट विच यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर your training over the logistic regression model, you get the probability results, ये आता है probabilistic। So first one you are getting 0.13, this is 0.98, and this is 0.23, these are the probabilities you are getting। You have made a threshold that is 0.5, the threshold is 0.5। okay, so obviously यहाँ पर क्लियर हो गया कि 0.13 will go to 0, 0.98 will go to 1, and 0.23 will go to 0, ये बोल गया। ठीक है, तो ये ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, प्रोबेबिलिटी है, बाद में आप उसको जो है यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द क्लास वैल्यूज में हो जाएगा ये। ओके, तो ये आपका एक यूज केस था।
तो एप्लीकेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करें तो क्वालिफाई लीड्स रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंटिसिपेट रेयर कस्टमर बिहेवियर मेनी थिंग्स there are there are many benefits of logistic regression also in case of engineering perspective यानी easy है interpretable है scalable है real time predictions है all these things ना it can do. The thing is the maths behind logistic regression that's very much important to learn why this model came. Okay, what is the cost function and how to derive the equation for cost function, how to perform the optimization of the cost function, what result logistic regression give, it gives probability. Okay, so you should be knowing all these things. बाकी तो application is been you can use anywhere. ठीक है, तो ये आपका y का वैल्यू था. ठीक है, y इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस w0 प्लस w1x. ओके, इसी को लेकर मैंने डिराइव करा है. ऑल राइट, सो यू वेरी वेल नो लॉग ऑफ ऑड्स लिया था आपने. ठीक है, फ्रॉम लॉग ऑफ ऑड्स ना वी गॉट सच काइंड ऑफ वैल्यू. ओके, देयर यू आर हैविंग व्हाट लॉग ऑफ p अपॉन 1 माइनस p इज इक्वल टू जो है आपका ये कुछ था y, फिर e की पावर y करा एंड ऑल, तो ये ऐसा करके कुछ मुझे मिला था. ठीक है, वी ऑलरेडी डिराइव्ड द इक्वेशन. ठीक है, और अब तो आगे आ चुके हैं हम काफ़ी. सो y जो है वो प्रोबेबिलिटी है, प्रिडिक्शन जो है प्रोबेबिलिटी दी, और ये सिग्मॉइड फंक्शन होता है, वी ऑलरेडी टोल्ड. ठीक है, लॉजिस्टिक इज अ सिग्मॉइड फंक्शन स्पेशली फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन उसके लिए हुआ है. ओके, सो ये आपका लीनियर मॉडल था w0 प्लस w1x. द लीनियर मॉडल represents a relationship between input feature and the predicted feature in a linear way. ओके, लीनियर में होता है. फाइन. सो क्या होगा, यहाँ बोल रहा है कि ये जो आपने लिखा है w0 प्लस w1x, उसमें व्हाट एवरी टर्म मीन्स. तो x तो आपका इनपुट है, w0 बायस है, w1 वेट है, और y आपका टारगेट है. ये होता है. सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज द लीनियर मॉडल टू मेक द प्रोडिक्शंस, स्पेशली व्हेन वी आर डूइंग योर टारगेट एज क्लासीफायर. वहाँ हम यूज़ नहीं कर रहे उसको, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू वाई क्यों यूज़ नहीं कर रहे. बिकॉज इट्स गिविंग यू द प्रोबेबिलिटीज. ओके, एंड प्रोबेबिलिटी वी कांट कीप. ठीक है, हम नहीं रखना चाहते. लॉजिस्टिक में प्रोबेबिलिटी मिलती है, ठीक है, और लीनियर रिग्रेशन में आपको कंटिन्यूस वैल्यूज मिलती है. ओके, एंड वी कंटिन्यूस वैल्यूज जो है आई कांट कीप इट फॉर द एज अ रिजल्ट फॉर द क्लासिफिकेशन, वो नहीं रख सकता मैं. ठीक है, सो दैट्स वाई लीनियर रिग्रेशन फेल्ड इन क्लासिफिकेशन. ठीक, आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी. ठीक, तो हियर आई एम गोइंग टू यूज द सिग्मॉइड फंक्शन. यही करा है हमने. सिग्मॉइड फंक्शन के बारे में पूरी कहानी बता दी. ये दिस इज द सिग्मॉइड फंक्शन. 0 से 1 के बीच में इट कैन कम बिकॉज इट्स गोइंग टू शो यू द प्रोबेबिलिटी. एस लैब का स्ट्रक्चर होता है ऐसा. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्मॉइड फंक्शन I can map the linear model in logistic regression to give the predictions. ठीक है, डिसिजन बाउंड्री के बारे में ऑलरेडी टोल्ड प्रीवियसली, बता चुका हूँ आपको व्हाट इज द डिसिजन बाउंड्री. ठीक, तो डिसिजन बाउंड्री में आपने देखा था कि इफ़ आई नीड टू क्लासीफाई, ये आपका क्लास ए है, ये आपका क्लास बी है. सो इफ यू नीड टू परफॉर्म द क्लासिफिकेशन, ऑब्वियसली आई नीड टू मेक अ डिसिजन बाउंड्री. फाइन, तो यहाँ हमने डिसिजन बाउंड्री निकाला था विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन ऑफ ए लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उससे निकाला था. दैट मीन्स 1 अपॉन e की पावर b0 प्लस b1x, एंड वी केप्ट b0 प्लस b1x, b0 प्लस b1x इक्वल टू 0. तो ये थ्रेशोल्ड दे रहा था विच वॉज 0.5. ठीक है, ये थ्रेशोल्ड दे रहा था. यदि मैं 0 रख दूंगा यहाँ पर, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ 0 हियर, इसकी 0 रख दूंगा, तो आई एम गेटिंग 1/2. तो 1/2 इज 0.5. ठीक है, तो it is a threshold, and if I go more than 0.5, I am going towards the class 1, and if I am going to less than 0.5, I am going to towards the class 0. That's what the things it has been showing here, यही बता रहा है. ठीक है, so if y equal to 0, I am having the probability less than 0.5. Y equal to 1, I am having the predicted probability more than 0.5. यही होगा. ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. एक तो बाइनरी है, तो बाइनरी तो बेसिक ही है, दैट्स व्हाट वी वर डूइंग, करते आ रहे हैं. एक है मेरे पास मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दैट मीन्स टारगेट वेरिएबल है वन ऑफ थ्री और मोर पॉसिबल कैटेगरिकल वैल्यूज. वन ऑफ थ्री और मोर, दैट मीन्स मल्टीनोमियल. आई कैन हैव अ मल्टी क्लासिफिकेशन हियर.
And I am having one more ordinal logistic regression. That means this is similar to multiple logistic regression, except the target categorical variables are ordered. उसमें ऑर्डरिंग होती है, इसमें ऑर्डरिंग नहीं है, मल्टीनोमियल में ऑर्डरिंग नहीं है. कैटेगरिकल वैल्यूज हियर इज ऑल्सो देयर एंड हियर इज ऑल्सो देयर, बट इट इज हैविंग मोर देन टू क्लास. ओके, दिस इज ऑल्सो हैविंग मोर देन टू क्लास, बट यहाँ पर ऑर्डर नहीं था. हियर आई एम अवेलेबल विद ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई. इफ यू वांट टू परफॉर्म द क्लासिफिकेशन ए बी सी डी, तो ये है. ओके, तो वो ऑर्डिनल हो गया. बट इफ आई एम गोइंग टू परफॉर्म द क्लासिफिकेशन लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, तो ये कोई ऑर्डर नहीं है. ओके, तो वो मल्टीनोमियल की कैटेगरी में आएगा वो. ठीक है, ये ध्यान रखना है. ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं आप, हाउ यू आर गोइंग टू डू द ट्रेनिंग. तो बेस्ट वेट्स मुझे निकालना है. बेस्ट वेट्स. ओके, द वेट्स वेयर आई एम गोइंग टू गेट द cost function nearly equal to zero. That means errors are going to be zero. So I need to perform the optimization of cost function, जो कि करके दिखा दिया मैंने आपको. ये आपका cost function है. This is our cost function. Okay, and I obtained this cost function from log loss और cross entropy. यहाँ से मिला था मुझे. Clear है आपको. पूरा differentiation also I did. Okay, and I explained the complete differentiation. आज भी बता दिया मैंने, repeat कर दिया आपको. ठीक है, fine. So the cost function checks what's the average error in between the actual class and the predicted class. What is the average error between actual and the predicted? तभी ये cost function है. And I need to reduce that average error. Or I already told you previously, there is a loss function and there is a cost function. Loss function is the stepwise error. Cost function is the average error. ये मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है. So the cost function not only penalize big errors but also errors with too confident, विच आर क्लोजर टू जीरो और वन. तो ये सबकी पेनल्टी करता है ये. ठीक है, एक चीज और है. पेनल्टी वाली बातें आई हैं तो आप बोलोगे सर रेगुलराइजेशन जैसी कोई टर्म है क्या यहाँ पर. रेगुलराइजेशन, डू वी हैव दिस थिंग. तो मैं बोलूंगा यस, वी आर हैविंग रेगुलेशन हियर ऑल्सो. लीनियर रिग्रेशन में आपने पढ़ा है L1 L2 रेगुलराइजेशन. सिमिलरली आई एम हैविंग रेगुलराइजेशन हियर ऑल्सो इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ठीक है, लेकिन इसकी सेपरेट एल्गोरिदम नहीं है. In case of linear regression we have seen कि हमारे पास रिच एंड लेसो वर प्रेजेंट सेपरेटली इन द लीनियर मॉडल. ओके, यहाँ पर नहीं है वो सेपरेट. यहाँ एज अ हाइपर पैरामीटर प्रेजेंट है मेरे पास in case of logistic regression. Okay, so I will be using those regression term in the logistic regression model itself as a hyper parameter. ठीक है, वो देखेंगे. फाइन. तो ग्रेडियंट डिसेंट से ऑब्वियसली ये लॉसेस कैलकुलेट कर रहा है, उसको कम कर रहा है. दैट्स द टास्क इट इज डूइंग. अब तो भी नहीं हो रहे. देखो, लॉस तो कैलकुलेट वहां भी हो रहा था इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन. सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू डू. देयर वाज आल्सो कॉस्ट फंक्शन देयर एंड वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द एरर्स देयर आल्सो. बट यू नो व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन इज आल्सो सब्जेक्टेड टू ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग. ये दोनों लफड़े थे उसके साथ. तो हमने बोला ओवरफिटिंग हो रहा है तो L1 L2 रेगुलेशन का यूज कर लो आप. डू दिस थिंग. तो जब वहां कर रहे थे देयर, तो यहां भी कर सकते हैं. दिस एल्गोरिथम आल्सो रेगुलराइजेशन या नॉर्मलाइजेशन करेंगे. ठीक. ओके, तो ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच हमने लगाई. ओके, इट इज मेथड ऑफ चेंजिंग द वेट्स. ये आपको अभी जस्ट बता दिया मैंने. ओके, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू, वो जो भी था वो बता दिया मैंने. बेस्ड अपॉन द स्लोप ग्रेडियंट डिसेंट निकालते हैं अपन. ठीक है, इटरेटिव अप्रोच है अनलेस एंड अनटिल आपका एरर जो है वो मिनिमाइज ना हो जाए. तब तक you need to perform the gradient. Till then you need to perform the optimization and try to make the weight and the bias in such a way that their value should be better. Okay, and they should give error or the loss to be equal to zero. We have to this much time जो है हमको करना पड़ेगा. ठीक है. सो वी कैन चेंज द स्पीड एट विच वी आर गोइंग टू रीच द ऑप्टिमल मिनिमा. ये हम कर सकते हैं with the help of a learning rate, adjustment of the learning rate. देखिए, learning rate is the step size I already told, and in the deep learning I am going to explain more about it. तो learning rate जो है you can change from your side. आप कर सकते हैं. In general we do take the learning rate minimum like 0.001. We can take 0.01, we can take 0.1 also. These are the learning rates which we do take. है ना, छोटे ही लेते हैं, जब बड़ा नहीं लेते. Okay, and what's the deal. I am going to start from any of the point and I'm going to go down.
ओके, एंड आई वांट टू रीच द ग्लोबल मिनिमा, यहाँ पर मुझे पहुंचना है कैसे भी करके, ठीक है. सो एनी पॉइंट आई कैन टेक, एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस ग्रेडियंट डिसेंट थिंग इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, बता चुका हूँ मैं पूरा कि ये रहा आपका बाउल, आप कहीं से भी शुरू करें पहुंचना आपको यहीं पर ही है, ठीक है. सो ये आप जो है दिस पॉइंट, यहाँ से मैंने ग्रेडियंट, यहाँ से एक स्लोप निकाला, फिर माई पॉइंट इज हियर, यहाँ पर एक स्लोप निकाला, वहां पर पॉइंट है यहाँ निकाला. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, ओके, टू रीच द मिनिमा. ओके, ये काम करना था मुझे. फाइन, तो लर्निंग रेट कैन बी एडजस्टेड. इफ यू आर नॉट गेटिंग द गुड स्कोर्स, एडजस्ट इट करना पड़ेगा. ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, और ये सब डेटा के ऊपर डिपेंड करता है. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डेटा. ओके, और आप अभी देख भी रहे हैं, वी आर अवेलेबल विद न्यू न्यू मॉडल्स. इतने मॉडल आ रहे हैं, और ऐसी भीड़ भाड़ मची है मार्केट में एआई को लेकर. ठीक है, आप, इफ यू स्क्रॉल योर आइस, if you scroll your eyes anywhere, you can see the two things. One you are getting NLP, one you are getting computer vision. इसमें भैया अलग अलग एडवांसमेंट्स को लेकर चल रहे हैं. एनएलपी में एलएलएम्स तो जो है, आप मान के चलिए एलएलएम्स जो बिग ब्रांड्स हैं, दे आर डिलीवरिंग एज मच एज पॉसिबल आउटपुट दे कैन. ठीक है, गूगल का जेमिनाई है, ठीक है, फेसबुक भी अपना काम कर रहा है, ठीक है, ओपन एआई तो खैर है ही, वो तो कर ही रहा है. Okay, so all these things now they are doing. So any approach to computer learning rate, so it's one upon number of training samples. Any approach to compute learning rate, is it one upon number of training samples, sir? This is what the approach which we see in general learning rate, जो आपने बोला ना, number of samples. ठीक है, क्या करते हैं हम, लर्निंग रेट जो है, एलआर, इसके लिए भी ऑप्टिमाइजेशन algorithms are there. Okay, for example, stochastic gradient descent. Okay, RMS prop. Okay, Adam. Okay, and there are many more optimization algorithms. ठीक है, तो इन दीज ऑप्टिमाइजेशन algorithm, एक है मोमेंटम बेस्ड. तो यहाँ पर लर्निंग रेट के साथ, एलआर के साथ, वी कैन डू द एक्सपेरिमेंट, and there are specific formula related to it, that how you are going to change the learning rate. अभी you told the learning rate we are taking one upon number of samples, तो वहां ऐसा जरूरी नहीं है number of samples, no, it's not mandatory. ठीक है, तो there are several techniques in the optimization. In initial optimization techniques, learning rate is constant रहता है. Later on we got some techniques where we keep the learning rate dynamic in nature. उसको बदल दिया हमने, constant नहीं रखा. So for example, you are going to start with the learning rate 0.1. It has been told to you that keep the learning rate smaller. So you can keep it as 0.1, 0.01 and 0.01. That's what I told. ऐसा रख दीजिएगा आप. This is what you can keep the learning rate. Okay, so if the samples are more, obviously your learning rate is less. It's quite clear, because I want my model to learn in a better way. So if the samples are more, data values are more, obviously I can't jump directly. I can't jump directly, and I can't reach the minima so quickly. ऐसा हो नहीं सकता. So what the sir told, that learning rate is one upon number of sample, that is subject to this particular problem. हम jump नहीं मार सकते एकदम से if your training samples are more. So I need to go slow, step by step, step size, so that my training sample, every data point, every pattern, actually मुझे pattern पकड़ना है ना डेटा में. I need to trace the pattern in the data. तो मुझे लर्निंग रेट और स्मॉल रखना पड़ेगा. एज मच एज नंबर ऑफ सैंपल्स आर देयर, कीप द लर्निंग रेट स्मॉल. इट कैन लाइक 0.001, इट कैन बी पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है लर्निंग रेट. एंड व्हेन द सैंपल्स आर लेस, तो थोड़ा सा लर्निंग रेट बढ़ा दीजिए आप, 0.1 कर दीजिए या 0.01 कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए. ओके, इट्स सब्जेक्ट टू यू. और क्या होगा ये रिजल्ट बताएगा. व्हाट विल हैपन, द रिजल्ट विल टेल यू. इफ यू कीप सच काइंड ऑफ लर्निंग रेट एंड योर रिजल्ट्स आर पुअर, सो ऑब्वियसली यू नीड टू चेंज द लर्निंग रेट. चेंज करके देखिए, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होगी. दिस इज हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ये हो जाएगा. चेंज करना पड़ेगा आपको. ठीक है, माई मेन गोल इज टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स इन द डेटा एंड टू फाइंड द ग्लोबल मिनिमा वेयर एरर और लॉस इज लेस. यही बात है. ठीक है, यही करा था हमने. ठीक है, तो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस ये क्या बोल रहा है कि लर्निंग रेट जो है, हाई लर्निंग रेट चेंजेस द वेट मोर ड्रास्टिकली, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज कर देगा वो वेट को.
करंटली योर वेट इज 1, नेक्स्ट टाइम योर वेट विल बी 10, यदि मैंने बड़ा लर्निंग रेट ले लिया तो। ओके, तो जितने जल्दी वेट को एडजस्ट करोगे ना आप, तो क्या होगा, मोर मोर ड्रास्टिकली एंड लर्निंग नहीं हो पाएगी मॉडल की, फिर प्रॉपर लर्निंग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। ओके, सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन साइज ऑफ द लर्निंग रेट, between the size of that means too low learning rate will might waiting forever, that means बहुत टाइम लगाएगा टू रीच द मिनिमम। हाई लर्निंग रेट विल रिस्क द मिसिंग द बेस्ट सेट ऑफ वेट्स, है ना, मुझे वो वेट्स नहीं मिल पाए मॉडल के जहां पर मुझे एक्यूरेसी या स्कोर बहुत अच्छा मिल रहा था। मैं आई डिड अ डायरेक्ट जंपिंग, मैं कूद गया डायरेक्ट, और बीच का वो छोड़ ही दिया सब कुछ मैंने। ठीक है, विच आई वॉन्ट माई मॉडल टू लर्न, because ultimately I want my model to learn patterns in the data, to draw the insights in the data. But if I'm going to keep the high learning rate, my model will jump, and the weight updation in the weight will be drastically high. Okay, ऐसा नहीं चाहता मैं। आई वॉन्ट रेगुलर एडजस्टमेंट्स ऑफ द वेट, लाइक एवरेज होना चाहिए, वो बेस्ट वेट्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जितने भी मॉडल्स हैं, ट्रेंड मॉडल्स हैं, ये क्या हो क्या रहा है, ये सब इतने होशियार हैं। व्हाट दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, राइट नाउ यू आर हैविंग मेनी मॉडल्स कमिंग इन द मार्केट। ठीक है, हर एक बड़ी कंपनी इज गिविंग, चाहे वो कंप्यूटर विजन का हो, चाहे वो इसका हो, एलएलएम्स वाला हो, सो दे आर ट्रेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, यानी वेट एंड द बायस, बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बनाया उन्होंने, ऐसा करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लिया और उठा के उस पर ट्रेनिंग मारी, फाइन ट्यूनिंग करी। ओके, फाइन ट्यूनिंग करी। ये मॉडल्स क्या है, व्हाट दीज मॉडल्स आर, दीज आर द डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, और बड़े बड़े तो आजकल इनमें क्वांटाइजेशन लगने लग गया, क्वांटाइजेशन, दे आर यूजिंग क्वांटाइजेशन टेक्निक्स। ओके, बिट्स एंड द बाइट्स, इतने बड़े बड़े मॉडल है कि वो जो है कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई कंप्यूटेशन, तो वो क्या कर पाते हैं, रिजल्ट्स पे नहीं निकाल पाते। ठीक है, सो ये रीज़न है। फाइन, ऑलराइट, तो ये है काम। एंड कंप्यूटर विजन का भाई अलग हिसाब किताब है। वी आर गोइंग टू यूज कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क हियर, CNN का यूज कर रहे हैं अपन। ओके, एंड अगेन we are developing new algorithms, better algorithms for detection, segmentation, classification। तो ये दोनों ही फील्ड है जो कि काम कर रही है। फाइन, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑप्टिमाइजेशन हुआ, एंड वी अभी अभी हमारे पास किस चीज की कमी है, यदि आप बोलें कि सर वी ऑल्सो वांट टू डेल्व इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, कमी किस चीज की हो सकती है, बेसिक तो सीख, बेसिक क्या बहुत अच्छे सीख रहे हो आप, एंड आई विल लेट यू लर्न मोर थिंग्स। तो रिसोर्सेज का मैटर है। ठीक है, रिसोर्सेज का मैटर, यदि आप बोलें कि सर वी ऑल्सो वांट टू बिल्ड सम एल्गोरिदम, बनाते ही हैं आप डीप लर्निंग के एल्गोरिदम, पढ़ेंगे डीएल। ठीक है, वी आर गोइंग टू बिल्ड एल्गोरिदम्स, वी आर गोइंग टू यूज द प्री ट्रेन मॉडल्स ऑल्सो टू परफॉर्म द फाइन ट्यूनिंग, करेंगे हम आगे। ठीक है, मैं रखने वाला हूँ प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे जेमिनी पे करना ही है, गूगल का जेमिनी जो है उस पर करना ही है, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसको। ओके, एंड एक और मॉडल जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का आ गया, योलो 9 करके। ठीक है, इसको तो इन पे करना ही है प्रोजेक्ट आगे। ठीक है, मेरे एंड पे मैंने अभी इसको करा एक्सप्लोर, बाकी और मुझे थोड़ा समय चाहिए, बिकॉज रिसेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर मोर, क्या रिसर्च में लिखा है इसमें। ओके, तो करेंगे इन पे प्रोजेक्ट्स। ऑल राइट, ठीक। फिर भैया आपका मॉडल ट्रेन हो गया, लर्निंग रेट यू डिसाइडेड, देन यू कैन परफॉर्म द इवेल्युएशन ऑफ द मॉडल। सो बिकॉज इट्स अ क्लासिफिकेशन मॉडल, सो यू हैव टू चेक द एक्यूरेसी। ठीक है, कि हाउ माई मॉडल प्रेडिक्टेड 0 as 0 एंड हाउ माई मॉडल प्रेडिक्टेड 1 as 1, ये निकालना है आपको। तो एक्यूरेसी है और नहीं निकाला तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड वी आर हैविंग AUC ROC कर्व ऑल्सो एज एन इवेल्युएशन, है ना, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एरिया अंडर कर्व। तो ये ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट, ये दोनों बताता है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द ट्रू पॉजिटिव रेट एंड द फॉल्स पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है, द रेशियो ऑफ सैंपल्स दैट वी करेक्टली प्रिडिक्ट बिलोंगिंग टू द करेक्ट क्लास। ठीक है, कितने सैंपल ऐसे हैं जो कि करेक्ट प्रिडिक्शन हुए हैं। ओके, 0 था 0 ही हुआ, या 1 था या 1 हुआ, वट एवर। रेट ऑफ ट्रू पॉजिटिव रेट, जिसको आपने बोला था ट्रू पॉजिटिव्स कितने, उसके रेट क्या है। ठीक है, फॉर द सैंपल्स। सो अगेन इट्स अ रेशियो of the samples that we correctly predicted belonging to the correct class. So you are having a total number of class, matlab total number of elements in that particular class, and how many your model corrected it as. For example, 8
मेरे मॉडल ने करेक्ट प्रिडिक्ट कर लिए, टोटल 10 थे, तो रेट हो जाएगा 80% का, 0.8, यानी 8 माई मॉडल प्रिडिक्टेड ट्रू, ठीक है, आउट ऑफ 10, 10 होना चाहिए थे, 8 करे, तो 8/10, 0.8 का रेट हो गया। और फॉल्स वाले में फॉल्स का होगा, दैट इज द रेशियो ऑफ द सैंपल्स विच इज इनकरेक्टली प्रिडिक्टेड, तो ये फॉल्स पॉजिटिव रेट हो जाएगा। तो इसका आर ओ सी ए यू सी कर्व बनता है ऐसे करके, समथिंग लाइक दिस, वो ऐसे करके कुछ कर्व बनता है, ठीक है। ओके, और ये ए यू सी होता है, एरिया अंडर द रीजन, जितना ज़्यादा एरिया आएगा उतना मॉडल का एक्यूरेसी इज बेस्ट। दैट आई विल टीच यू इन मॉडल इवेल्युएशन क्राइटेरिया, अभी आ ही गया सामने तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। सो द एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व बना है इसके अंदर जितना ज़्यादा एरिया आएगा, दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, दैट मच हाई एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, how much region it has been covering or bounding, that is the accuracy. So these are the things AUC ROC, ठीक है, this we have to make in the classification algorithms, okay, बनाना पड़ता है evaluation के लिए, okay, yes. AUC sir, Okay. area under curve sir, AUC is area under curve sir, this thing, okay, AUC is area under the curve, like this. Answer. My Hmm. question is like there is a curve and there is a line as well, right? In that हाँ 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 particular हाँ curve. हाँ हाँ, ऐसा लाइन रहता है ना सर, वो ये In लाइन, ये रेट बताता है सर, है ना, हमने बोला था ना TPR FPR, ये रेट है, okay. ठीक है, एंड दिस इज द एरिया, दिस इज द कर्व, ये बताता है, ठीक है, दिस विल शो द एक्यूरेसी, हाउ मच योर मॉडल So इज एक्यूरेटेड। uh, is that line have any inclinations, bobs, which have particular meaning, or always the line will be like that, इट विल बी लाइक like दिस a ओनली सर, ऐसा कुछ मैंने तो नहीं देखा, ओके, आई ऑलवेज बीन व्हेन आई डू प्लॉट, हालांकि मिनिमम है, आई जस्ट गो थ्रू विद एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, देन कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बनाता हूँ, ठीक है। ए यू सी आर ओ सी कर्व ना लिस्ट में बनाता हूँ इसके अंदर, ठीक है, बट स्टिल दीज आर समथिंग विच कैन बी प्लॉटेड, करना चाहिए उनको, बिकॉज ये जो लाइन है आपका, ये रेट बता रही है, टीपीआर और एफपीआर वाली बातें हो रही है, एक आपका टीपीआर होगा और एक आपका एफपीआर होगा, ट्रू पॉजिटिव रेट एंड द फॉल्स पॉजिटिव रेट, ठीक है, और जिस रेट से चल रहा है उसी के हिसाब से एरिया बाउंडेड बताएगा ये, ठीक है, दैट विल बी योर ए यू सी कर्व। sir, is there any method to quantify or just only we can see the curve? क्वांटिफाई द थ्रेश होल्ड मीन्स, Means, how will you know better accuracy having like area maximum area will be there as you say, सर or how वो can we under सर क्या होता है कि आई थिंक इट डू प्रिंट अलोंग विद दिस, ये बना के बताता है ये, आप देखेंगे, अब कर्व से ही समझ आपको, विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम ओनली ना, वी विल अंडरस्टैंड, यहीं से समझ में आ जाएगा कि कितना रीजन इट इज बाउंडिंग, हाउ मच रीजन इट इज बाउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा चल रहा है कुछ, समथिंग लाइक दिस, सो ऑब्वियसली इट इज बाउंडिंग द मैक्स ऑफ द रीजन, मैक्स रीजन इट इज बाउंडिंग, तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी विल बी मोर, इट विल बी लाइक 0.8, 0.98 या 0.99 या 1 भी आती है, कभी कभी 1 भी आ जाती है। ओके, सो बाय सीइंग दिस कर्व कि वो कितना कर रहा है, ठीक है, वहां से रीजन कितना बाउंड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आर गेटिंग लेस, यदि आपका प्रॉपर नहीं बन रहा है, समथिंग लाइक दैट, ओके, ऐसा करके, ठीक है, तो फिर यू आर हैविंग अ लेस एक्यूरेसी, दैट मीन्स मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। ओके, तो आप जो कह रहे हो थ्रेशोल्ड वाली बातें, यस होती हैं, यस दे आर, ये थ्रेशोल्ड वगैरह और कर्व पे देखकर हम समझ जाएं कि क्या थ्रेशोल्ड है, तो मुझे जो सिग्मोइड फंक्शन है, सिग्मोइड की बात करें तो हमने थ्रेशोल्ड बनाया था, ओके, लाइक दिस, वी मेड अ थ्रेशोल्ड, ये था अपना 0.5, दिस वाज द थ्रेशोल्ड फॉर द सिग्मोइड फंक्शन, ओके, तो इसी के करस्पॉन्डिंगली मुझे कर्व पे कुछ मिलना चाहिए इफ आई एम यूजिंग दिस एल्गोरिदम। बाकी देर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स, क्योंकि ए यू सी आर ओ सी कर्व इज कॉमन, इट इज जनरल फॉर ऑल द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, सब पे सबके लिए एप्लीकेबल है ये तो, ओके, सो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, जितना आपका रीजन ज़्यादा ये कर्व बना रहा होगा उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगा, एंड इट डिस्प्ले ऑल्सो बताता है कि कितना रीजन है, जैसे 0.98 है, 0.99, तो इट डिड टेल यू, बताता है, बाकी आपके sir, रेट्स हैं। one more question is like already we are calculating the accuracy, हाँ हाँ precision, हाँ, ऑलरेडी efforts हाँ for all ऑलरेडी the things. हाँ ऑलरेडी So कैलकुलेटिंग। what different information this ROC AUC curve gives other than सर देखिए, the ये one? टीपीआर और एफपीआर की बात हुई थी बस, टीपीआर एंड एफपीआर, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी आर ऑलरेडी प्रिंटिंग द एक्यूरेसी, वी आर ऑलरेडी प्रिंटिंग द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट,
कन्फ्यूजन मैट्रिक्स सब तो बता दिया हमने, तो तभी तो मैं कह रहा था सर कि मैं इसको कम बनाता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग आई लेस टाइम ही मैं कभी AUC ROC बताता हूँ। इफ आई नीड टू शो TPR एंड FPR, ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट, देन आई कैन शो दिस कर्व, okay, and area under curve, and this ROC, receiver operating characteristic, okay, that means it's a characteristic curve for a model, बस इसको ये कह सकते हैं, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर अ मॉडल। एक्चुअली हुआ क्या है, लीनियर रिग्रेशन के अंदर मेरे पास एक रिग्रेशन लाइन बनती है, आई एम हैविंग अ रिग्रेशन लाइन। अब यहाँ पर क्या बनेगा, दैट्स अ क्वेश्चन, व्हाट आई कैन शो कि माई मॉडल इज वर्किंग गुड, सो काइंडली ड्रॉ सम प्लॉट्स फॉर मी, हाउ आई कैन इंटरप्रेट अ मॉडल बाय सम प्लॉट, क्या है मेरे पास बताने के लिए, वहां तो रिग्रेशन लाइन थी, यहाँ थोड़ी ना, इट्स अ क्लासीफायर। तो उसको उसको बताने, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, ठीक है, हाउ माई मॉडल इज वर्किंग, तो उन्होंने TPR और FPR के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, उन्होंने बोला कि देख लीजिए मॉडल इज वर्किंग लाइक दिस, दिस इज हाउ द मॉडल इज वर्किंग, एंड बाय टेकिंग द रेट ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव्स, मतलब TPR एंड द फॉल्स, है ना, पॉजिटिव एंड योर रेट एंड फॉल्स रेट को लेकर, आई कैन से दैट माई मॉडल इज वर्किंग दिस मच गुड, ये मैं ले सकता हूँ, तो जस्ट टू शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडल। ओके, कुछ मेरे हाथ में होना चाहिए इसलिए बता, हालांकि ऑल द वैल्यूज वी कैलकुलेटेड, सब निकाल लिया, प्रिसीशन, रिकॉल, F1 स्कोर, एक्यूरेसी, सब निकाल लिया हमने, और इसमें सबसे ज्यादा तो वही मैटर करता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये मेरा मॉडल कितना कंफ्यूज हुआ, तो वी कैन ड्रॉ प्लॉट फॉर कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑल्सो, बनाती भी है, यहाँ पर प्रोजेक्ट ने बनाया है, विद द हेल्प ऑफ साइकिट प्लॉट आई मेड द प्लॉट फॉर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, हीट मैप बनाया, ठीक है, ये बनाते हैं, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक शो करना है तो ये बना। ओके, सो ये आपका इवैल्यूएशन वाली बात हुई है। ये सर सराहत ये होती। कर्व बनता कैसे है? कुछ हम्म, मतलब हम्म, क्योंकि आपने अपने पास तो सिर्फ दो ही वैल्यू होती है ना, तो हाँ हाँ बीच की वैल्यू कहाँ से आ जाती है? सर, ये जो है एरिया वो देख रहा है कि कितने पॉजिटिव हैं, कितने जो है नेगेटिव हैं या फॉल्स है, ओवरऑल जो है वो उनका रेशो ले रहा है सर ये, ठीक है, हाउ मच हाँ पर पॉजिटिव एंड हाउ ये मच नेगेटिव एंड टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाउ 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 मच दे आर, सो मैंने कितने सो पॉजिटिव ये तो निकाले। जीरो के दोनों के बीच में मतलब एक स्क्वायर बन जाएगा बिटवीन 0 and 1, राइट? 0 and 1 ऐसा तो करके, यस, हाँ 0 and 1, मतलब यस। पे 0 and 1, वाई पे 0 and 1, जो कर्व बनता है उसके लिए जो बीच के पॉइंट है वो कहाँ से आएंगे? सर बीच के पॉइंट कहाँ से आएंगे आपके लिए, सर देखिए तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है ना, वो तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो मुझे जो रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव भी आया है, तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी आई है उसकी भी, आप ये देखिए 0 से 1 के बीच में सिर्फ प्रोबेबिलिटी की ही बात हो रही है ना, कोई भी मेरा मॉडल देख लो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एनी ऑफ द क्लासिफिकेशन मॉडल वो सब प्रोबेबिलिटी ही देते हैं, कोई आपको डायरेक्ट 0 1 नहीं देता, 0 9 वाली बात ही नहीं है, जितने भी मॉडल हैं अपना क्लासिफिकेशन करने के लिए वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड बात करते हैं, तो इसलिए सर वो 0 से 1 के बीच में आप बोल रहे हो कि कर्व आ रहा है, ठीक है, वो इसी इसी टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रख के आ रहा है, प्रोबेबिलिटी को ध्यान में सो रख के आ रहा लेकिन ये प्रोबेबिलिटी जैसे हमारी प्रोबेबिलिटी क्लासिफिकेशन में है। हाँ। अगर मल्टी क्लास भी हो हम्म तो हर एक केस के लिए अलग होता है, मल्टी लेकिन जो क्लासिक। फाइनल इवैल्यूएशन होता है वहां पे तो जैसे हाँ। क्योंकि यहाँ पे एक्स पे शायद फॉल्स पॉजिटिव रेट और वाई पे ट्रू पॉजिटिव रेट, ठीक है ना, तो ये तो फाइनल वैल्यूज हो गई ना, हाँ फाइनल ये वैल्यूज तो हो, इसमें तो हाँ ये हाँ फाइनल तो वैल्यूज हो इसमें गए। बीच में प्रोबेबिलिटी कैसे यूज किया वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे आया वो। सी अब आप सर इसे कर्व की बात कर, ये AUC कर्व यही कह रहे हैं ना आप, सर कहाँ से यूज करा इसने इसके बीच में, व्हाट इट मेड कि ये कर्व कैसे आ गया, तो भाई क्या हो रहा है, आप अपनी एल्गोरिदम को सर नंबर ऑफ इटरेशंस चला रहे हैं, ओके, नंबर ऑफ इटरेशंस आपकी एल्गोरिदम चल रही है, और कोशिश यही कर रहे हैं हम कि लॉसेस को रिड्यूस कर सकें, ठीक, तो सर यहाँ पर वो यदि बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है मॉडल, बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, इसी तरीके से वो मूव करेगा, मेरा मॉडल लीनियर मॉडल नहीं है सर, लीनियर नहीं है, लीनियर के लिए सर मैंने ये रिलेशनशिप, आई हैव डिफाइंड दिस रिलेशनशिप TPR एंड FPR का बीच में, मेरा मॉडल लीनियर नहीं है, मेरा मॉडल दे रहा है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटिस्टिक की बात आती है तो सर मुझे कुछ ऐसा ही कर्व देखने को ऐसा मिलेगा, ठीक है, इंटरनल बात यही है। सो ये आइट्रेशन के जो आइट्रेशन में हाँ हाँ आइट्रेशन में जो
ट्रू पॉजिटिविटी और ओके, सो ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है पीच आइट्रेशन का, उसके ऊपर डिपेंड हाँ करता हाँ, है। उसके ओके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है सर, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑलराइट। तो फिर भी आपका क्वेश्चन काफ़ी वैलिड है। और ये जो ए यू सी आर ओ सी कर्व के बाद में मेरे पास बहुत छोटी सी चीज़ लिखी थी, वेरी स्मॉल थिंग्स हैव बीन रिटन हियर। वो इतना बोला कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द रिसीविंग ऑपरेटिंग कैरेक्टर से डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टी। तो अभी मैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ही बता रहा था, ये टी पी आर और ये एफ पी आर। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, हाउ इट इज मूविंग, कैसे जा रहा है। फिर ये एरिया कहाँ से आया, ये क्वेश्चन ये उठा कि सर इफ यू आर गोइंग टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, ये एरिया कहाँ से आया, हाउ यू डिफाइन द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, कर्व कहाँ से आया, फिर ये क्वेश्चन उठा, व्हाट इज द कर्व, हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ कर्व। रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो भाई हम समझ रहे हैं, टीपीआर एंड एफपीआर, या रेशियो वाली बात है, वेयर यू आर गेटिंग द एरिया। तो भाई एरिया वाली जो बात है, हमारे जितने अल्ट्रेशंस हो रहे हैं, जितने इटरेशंस हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो रही है, ठीक है, और जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा है। और ओवरऑल जो फाइनल आया था, जैसे मैंने कहा 0.98, तो वो कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला लगा रहा है वो, हाउ मच पॉजिटिव एंड हाउ मच नेगेटिव ओवरऑल आपको मिले, एंड टोटल कितने थे, हाउ मेनी टोटल वर देयर। सो फॉर एग्जाम्पल जितना पॉजिटिव नेगेटिव आया, वॉट एवर प्रिडिक्शन करे जो मॉडल ने, दैट वॉज फॉर एग्जाम्पल 99, एंड टोटल वर पॉजिटिव नेगेटिव वर 100, तो आपका ये आ गया 0.99। तो वो बोल रहा है इतना ही, इतना एरिया उसने बाउंड कर दिया है आपको। ठीक है, दिस इज द एरिया, बट स्टिल हम उसको और एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ठीक है, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सारे प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, ऑल द थिंग्स, वहां पर फिर से कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स ना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, AUC इज कंप्यूटर इंटीग्रेशन फॉर्मूला, हाँ ना सर, फॉर ईच डेटा पॉइंट यूजिंग द लिमिट, तो इंटीग्रेशन आएगा सर। ये देखिए, ये क्या है आपका डेटा, आपने करा इफ वी आर एक्सीडेंटल डेटा, ये पुराना है। AUC इज द सर एरिया, एरिया तो सर इंटीग्रेशन से ही निकलता है। तभी मैंने बोला ना, आपके जितने अल्ट्रेशंस हुए हैं, जितने इटरेशंस आपके हुए हैं पूरे, तो जीरो से लेकर फॉर एग्जांपल जितने आपने इटरेशंस करें, यू आर अवेलेबल विद द फंक्शन। ठीक है, तो वो आपके कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी हर एक अल्ट्रेशंस पे, उसके हिसाब से आपने एक एरिया बाउंड कर दिया, एरिया बाउंडिंग करिए। वो हमारी बात हो गई सर इस बात को, इसको लेकर। ठीक है, फॉर एवरी एवरी दिस थिंग कंप्यूटेशन हम ये पूरा एरिया या रीजन निकालेंगे। ठीक है, एंड अभी ये और सजेशन आया कि हाउ, अब और कौन सा इसमें मेथड वी नीड टू टेक। ठीक है, कैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास तो कॉस्ट फंक्शन ही है, कॉस्ट फंक्शन इज देयर फॉर मी फॉर द लॉजिक, इसके अलावा मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं है, ओनली कॉस्ट फंक्शन इज देयर, वेट और बायस है। ठीक है, तो हाउ वी आर गोइंग टू यूज द वेट एंड द बायस एंड दिस कॉस्ट फंक्शन थिंग while calculating this area, तो हम इसको आगे चेक करेंगे। विल डू द प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट करके, मतलब उसमें जो करते हैं अपन, एक डेटा लेते हैं, ट्रेन करते हैं, तो उसमें सारे प्लॉट्स को लगाएंगे, प्लॉट्स एंड एक्यूरेसी निकालेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स ना, विल कंप्यूट, प्रिंट करेंगे सभी को। ठीक है, वहां पर एक बार और इस पॉइंट को नोटिफाई करेंगे। सो मैं इसको अभी अपने पास रख रहा हूँ, AUC वाली टर्म को। ठीक, हालांकि एक्सप्लेन करा, लेकिन और बेटर मुझे लग रहा है बताना पड़ चाहिए। तो ठीक है, मॉडल इंप्रूवमेंट करना है, तो ऑब्वियसली यदि मॉडल कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, कन्वर्ज यानी मिनिमा इट इज़ अनेबल टू फाइंड, तो ऑब्वियसली आपका फेल हो गया वो मॉडल, प्रिडिक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कंफ्यूज है मॉडल। ओके, तो जो है उसके लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं। सो यहाँ उन्होंने कहा कि फीचर स्केलिंग, फीचर कम इन अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, या नॉर्मलाइज करो उनको, तो कुछ इश्यूज बता दिए इसने यहाँ पर, विच में रिजल्ट when your model is unable to converge. For example, if you are doing binary classification 0 1, जो अभी केस लिया था मैंने, वो डिफॉल्टर वाला, ठीक है, यदि ये कर रहे हो तो, और हमने कोई स्केलिंग नहीं करा, वी हैवंट डन एनी स्केलिंग, ना तो मैंने एज को स्केल करा, ना मैंने आई हैवंट डन द स्केलिंग फॉर द लोन ऑल्सो, हाउ मच अमाउंट द पर्सन टुक फ्रॉम द बैंक, आई हैवंट डन एनी काइंड ऑफ स्केलिंग। तो ना स्केल करा, ना नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड्स, कुछ नहीं करा मैंने फीचर्स को, बट इट इज सेइंग, क्या कह रहा है ये, कि फीचर कम ऑन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अलग अलग मैग्नीट्यूड हो सकता है फीचर्स का। ठीक है, और वो था ही, दे आर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली एज इज लेस एंड मनी इज मोर, ऑब्वियसली अलग अलग मैग्नीट्यूड था, ये हाई मैग्नीट्यूड का था, यानी लो मैग्नीट्यूड का था, स्केलिंग नहीं करा हमने। ठीक है, मैंडेटरी तो मुझे नहीं लगा कि करना चाहिए था, मैंने नहीं करा, इट्स नॉट लुकिंग मैंडेटरी। ओके, तो
यदि आपका मॉडल कन्वर्ज नहीं हो पा रहा, ऐसी स्थिति में रिजल्ट्स नहीं दे रहा, स्केल करो फिर। ठीक है, आई ओनली डिड वन हॉट एनकोडिंग ऑफ द डेटा। तो देखिए क्या है, ये आप क्वेश्चन फिर फायर करोगे, सर कब करना है स्केलिंग, कब नहीं करना है स्केलिंग, when we need to normalize, when you did not have to normalize। See, देखिए क्या होता है, we are playing with the data sir, we are playing it। तो विदाउट स्केल करें, देखो कुछ तो अजम्पशंस थे जो रखने ही है आपको, मिनिमम अजम्पशंस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के भी थे। उन्होंने कहा कोरिलेशन कोलिनियरिटी हटा दो, इतना ही उन्होंने बोला। we don't have any further specific assumption for logistic regression। it told कि जो है नॉर्मल डेटा नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं था। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें वॉट एवर बी पार्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन नहीं होना चाहिए था। आउटलायर रिमूव करना है कर दीजिए, ठीक है, ये चल जाएगा, आउटलायर रिमूवल चल जाएगा। ठीक है, ये सब कर सकते हो। स्केलिंग की बात नहीं हुई थी, स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन वॉज नॉट बीन प्रेजेंट। तो आपने लगा दिया, इफ योर रिजल्ट ऑन बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे थे, स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट, तो आप अपना पूरा प्री प्रोसेसिंग चेक कर लीजिएगा डेटा का, और यदि हो सके तो एडिशनल स्टेप्स लगा दीजिए, फीचर स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन ये कर दीजिए आप। ठीक है, यू डू दिस थिंग, ट्राई टू परफॉर्म स्टैंडर्ड स्केलर, ये कर दीजिए आप, और फिर देखो आपका मॉडल काम कर रहा है सही या नहीं कर रहा है। ओके, सो इट इज सब्जेक्ट टू द प्रॉब्लम, सब्जेक्ट टू द डेटा, इफ यू आर नॉट गेटिंग द गुड रिजल्ट्स। ठीक है, और आ गए तो कोई अच्छी अच्छी बात है, फिर तो इशू नहीं है। ओके, तो ये है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। ठीक, आई हैव सम फ्यू मोर थिंग्स, कुछ और नोट्स भी हैं मेरे पास उसको बोलने के लिए, वो तो क्विक रिव्यू है नोट्स का, जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी टॉट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है दैट विल बी doing the implementation of logistic regression using Python. And in the implementation, we'll try to print all these: accuracy, precision, recall, F1 score, confusion metrics. Okay, and then AUC ROC curve also. उसको एक्सप्लोर करेंगे, बढ़िया है वो। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, विल वर्क फॉर इट। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, फाइन, सो हियर आई एंड।